joining back. Someone is asking that, okay, if you can share the process for joining GDG for conducting session, that will be great. Okay, so then, first of all, the process for joining GDG for the session is very simple. If you guys are stick to our social media accounts, you guys will be getting a post which we usually share for the speaker call. It's usually called the call for the speakers. So whenever we share the forms for that, you guys can fill out that. Make sure you enter all the um, make sure you enter all the details and information about yourself correctly. So we our core team go through it. We conduct a short interview for that person, and if that person qualifies for it, that person can definitely conduct a session at GDG Cloud Islamabad. And yes, that's how anyone can uh, give a talk with the GDG Cloud. I'm really sorry, I was a bit off for some time. Other than this, if we talk about the GDG Cloud Islamabad, that usually people ask this question that how you guys can join the team for. Okay, nice. How long does the waiting process per apply for speaker haven't head back? Okay, Adnan, basically जब हम speakers के लिए selection कर रहे होते हैं, so we are going through all of their qualifications and details, and usually we prefer those speakers who are a little bit experienced, and if they are not experienced, we look forward to this कि वो जिस चीज़ पर भी सेशन देना चाह रहे हैं, either that is familiar to our technologies, to the technologies of cloud, to the technologies that Google is promoting. So हमेशा उस चीज़ को प्रायोरिटाइज किया जाता है. तो अगर कोई भी ऐसा बंदा है जो इस चीज़ से रिलेटेड टॉक देना चाहता है, दैट आर द टेक्नोलॉजीज ऑफ गूगल, उसको हमेशा प्रेफर किया जाता है. हमारे पास सेकेंडरी ऑप्शन में ये चीज़ जाती है कि अगर कोई चीज़ गूगल की टेक्नोलॉजी से हट के होती है तो. सो यस, दैट वाज द आंसर फॉर दैट. और अगर GDG क्लाउड इस्लामाबाद की टीम की बात की जाए तो बेसिकली इट इज़ अ वॉलंटियर कम्युनिटी एज वी ऑल नो. सो इसमें हमारे पास जो भी बंदे होते हैं वो एट द पोजीशन ऑफ वॉलंटियर होते हैं. सो एनीवन हु इज इनटू द tech world, or even non-technical, either they are professional, either they are students, they can join us when we go for our volunteer drive. हम इसी तरह जिस तरह हम कॉल फॉर द स्पीकर करते हैं, we also go through the volunteer drive जब हमें लगता है कि we need the people in our team. So again, the criteria is simple. You guys need to stick with our social media accounts. As far as आप लोग उसके साथ फेमिलियर रहेंगे तो आप लोग इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं. टेलिंग अबाउट माई सेल्फ, आई ऑल्सो ज्वाइंड एज अ वॉलंटियर. लाइक आई एम द स्टूडेंट. I'm leading the Google developer group community in my university as well. If you guys are familiar with it, that there is a term known as GDGOC, which is Google Developer Groups on campus. So I'm running the community of Google in my campus as well. I'm part of GDG Cloud Islamabad as well. So you guys can, it's totally upon you guys. जिस तरह से भी आप लोग इसको लेके चलना चाहें. Even we have professionals as well. Like if talking about Sarmad, Munib, they all are professionals. We also have students in our team. You guys can see Asar, you guys can see SN. So yes, that's how it works. If my uni haven't on campus UDG, can I join GDC? Okay, so say basically अगर आपकी यूनिवर्सिटी में GDGOC की कम्युनिटी ऑलरेडी नहीं है, so the process is that you have to look after the platform of Google Developer Groups. हमारे पास जब भी Google Developer Groups की positions आती हैं for the lead, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. Once you applied for that,
देयर इज़ अ होल प्रोसेस जिसमें आप अप्लाई सॉरी जिसमें आप लोग अप्लाई करते हैं विद ऑल द डिटेल्स। आपका एक शॉर्ट इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम द गूगल representatives, or once you qualify for that, you got a mail that you have been selected for your campus lead. Once you are selected for your campus lead, you have to look forward for the advisor in your university जो कि आपकी इस community को support करे in your university। ठीक है। Once you are done with that, there is a short process which is registering this community in the university. So आप अपने head of department से approval लेते हैं, और after getting that approval, you guys are official and that's official community of your university. So you can become a campus lead. उसके बाद आप लोग एक अपनी टीम वो करते हैं, सॉरी, टीम बनाते हैं जिसमें इट्स टोटली अप टू यू, आप कैसे लेके चलना चाहते हैं। एंड सेम प्रोसेस होता है, आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में इवेंट कंडक्ट करते हैं गूगल से रिलेटेड एंड ऑल दैट स्टफ। आई एम आल्सो मेंबर ऑफ इट, AIML लीड। ओह नाइस। Assalamu alaikum everyone. I just had a किसी और call का with भी कोई this. क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस थिंग, आई एम ओपन टू आंसर इट। Go Assalamu ahead, alaikum Sarmal. everyone. Yes, I Great, just great. had a call I with the believe that speaker, our and speaker is back, and okay, Assalamu Samad, alaikum do you everyone. want to announce something? Assalamu alaikum everyone. Sorry for the delay. I had a technical issue with my laptop, so apologies from my end. So I'll continue. Guys, we are really sorry for this inconvenience. Yes, इंशाल्लाह अब इशू नहीं आएगा। yes, sure. So I'll share my screen again, and we'll continue from where we left. Arslan sir, can you please make a slideshow for your presentation so Yes. that everyone can see the slides easily? Okay. So are my slides visible to you guys? Yes, it It's is. on a slideshow. Yes, it Yes, is. yes. Okay. Okay. सो वी वर मैं अभी बात जब जहाँ से हम पीछे कर रहे थे वो यही था कि गूगल के जब आप साइन अप फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो यू सी अ कंसिस्टेंसी के जब भी कोई एरर मैसेज लोड होता है या कोई एक्शन प्राइमरी एक्शन या नॉन प्राइमरी एक्शन बटन जो कि होता है उसमें आपको एक कंसिस्टेंसी नज़र आएगी आइदर विद द कलर्स और विद द टाइपोग्राफी यू कुड सी इजीली रिलेट टू देयर typography used in their headings or their subtext or maybe their paragraphs, either they are a message paragraph or whatever. So this is how you maintain a consistency. So I have two examples, मेरे सामने दो examples अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हो। यहाँ पर आप अगर देखें तो आपकी एक प्राइवेसी पॉलिसी का एक टैब आपको सामने अपनी स्क्रीन पे नजर आएगा जहाँ पर दो बटन्स जो हैं वो आपको सामने नजर आ रहे हैं। एक में कैंसिल वाला बटन आपको स्टार्ट में नजर आएगा और दूसरे में आपको कैंसिल का बटन सेकंड पे नजर आएगा। अब अगर मैं आपसे इस बारे में पूछूं कि इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सी बेहतर अप्रोच है प्राइवेसी पॉलिसी को एग्री करने के लिए या कैंसिल करने के लिए, तो व्हाई व्हाट वुड यू से व्हाट यू वुड बी योर टेक ऑन दैट? Anyone can answer on the comment section. I'm reading your comments. Yes. Okay. Okay. Yes. So basically, अगर आप first second preference में देखें तो that's the best approach because your primary action is the agree and you make the secondary one cancel. मतलब cancel को आप secondary option के तौर पे treat कर रहे हैं जबकि agree वाला option आपका प्राइमरी एक्शन है। दैट्स वाई जो प्राइमरी एक्शन होता है उसको हमेशा आप फर्स्ट पे ट्रीट करते हैं और सेकेंडरी ऑप्शन को आप बाद में ट्रीट करते हैं। इस वजह से इसकी आप अगर देखें तो आपको स्टार्ट में नजर आ जाएगा कि हमने उसके मुताबिक इसकी लिस्टिंग की हुई है।
सो कोट फॉर द डे इज के आपका फ्रेडरेंट पोर्शे जो कि पोर्श मोटर के जो हैं ऑटोमोबाइल्स के फाउंडर भी हैं, ही this quote is that design must be functional and functionality must be translated into visual aesthetics without any resilience in reliance on gimmicks that have to be explained. It's a very powerful quote, specifically if we are talking about design system or making a consistent UI design. डिज़ाइन की फंक्शनैलिटी को जब आप विजुअल्स में ट्रांसलेट करते हैं तो उसको एक्सप्लेनेशंस रिक्वायर्ड नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपका डिज़ाइन सिस्टम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, तो आपकी हर चीज़ पहले से प्री डिफाइंड हो। जब प्री डिफाइंड चीज़ होती है तो आपको ऑब्वियसली उसके अंदर उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी कोर फंक्शंस को बार-बार किसी को रिपीटेडली बताना नहीं पड़ता, बल्कि आपका चाहे वो डेवलपर हो या डिज़ाइनर हो, अगर हम किसी प्रोडक्ट यूआई के एस्पेक्ट से बात करें, तो जब एक डिज़ाइन सिस्टम पहले से फंक्शनल होगा तो उसकी फंक्शनैलिटी ऑलरेडी डेवलपर एंड पे, डिज़ाइन एंड पे पहले से क्लैरिफाइड होंगी। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका डिज़ाइन की फंक्शनैलिटी जो है वो वेरी क्लियर और साउंड हो। Okay, starting with the design system, as I told you earlier, it's basically a set of rules or style guidelines, either in or a color palette that are reusable in your design. और ऐसे डिज़ाइंस के वो पार्ट जो आप कंसिस्टेंटली अपने डिज़ाइन के अंदर रीयूज कर सकते हैं। मल्टीपल ओकेजन्स के ऊपर आपकी स्क्रीन्स के ऊपर वो चीज़ ट्रांसलेट होके आपको सामने बनती हुई नजर आ रही होती। Why is it so important? इट्स बिकॉज जब आप प्रोडक्ट्स को स्केल अप कर रहे होते हैं तो डिज़ाइन शुड बी कंसिस्टेंट, इट शुड बी स्केलेबल इनफ। आपकी जो ब्रांडिंग है जो आप स्टार्ट से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी आपको उसके अंदर नज़र आनी चाहिए जो आपके ब्रांड को डिफाइन करती है। एंड ऑब्वियसली जब आप टीम वर्क में काम कर रहे होते हैं मल्टीपल डेवलपर्स और डिज़ाइनर्स के साथ, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे क्लैरिटी के साथ एक दूसरे को कन्वे करने में आपके लिए ईज होती है। विदाउट अ डिज़ाइन सिस्टम आपका जो प्रोजेक्ट होता है उसकी कम्प्लेक्सिटी ना सिर्फ इंक्रीज होती है बट के एक मेस भी क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके लिए हर दफ़ा जो प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है जब भी कोई नई टीम आप हायर करते हैं या फिर नए आइडियाज़ फ्लोट इन करते हैं प्रोडक्ट के अंदर फ्रॉम द टीम एंड। सो अगर मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं, आई वुड से कि अगर आप में से किसी ने कोई अगर केक को बेक किया हो या कोई ऐसी रेसिपी या कोई ऐसी चीज़ घर में बनाई हो, तो उसके लिए आपको क्या चीज़ चाहिए होती है। आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ अ केक. You would need initially you would need an ingredients set of ingredients with and you should combine them and by using the set of recipe जो आपके सामने मौजूद हो, और उस रेसिपी के मुताबिक उन इंग्रेडिएंट्स को जब आप मिक्स अप करते हैं तो फिर उसको जब आप बेक करेंगे तो आपका जो एंड प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाएगा। अब एक ब्लू केक शॉप है जो कि स्पेसिफिकली एक ब्लू केक जो उनका एक फेमस प्रोडक्ट है उसको बनाती हैं, जो कि आपको सामने स्क्रीन पे अगर नजर आ रहा हो। इनिशियली तौर पर अगर उस केक को कंज्यूम करने वाले या उस केक के बारे में जो लोग जानते हैं वो शायद a set of people हो, maybe 10 to 15 people, तो one chef would be enough जो कि उस चीज को cater कर सकता है easily. But when we have a huge the growth of the customers start growing, you would see that for one chef it's not very easy to manage the recipe or convey it to their or give those to the people as well, or make their customers satisfied. So he would obviously need a support, usko ek support chahiye hogi, so we would hire, then option would be ke ek aur chef ko hire kar liya jaye. Okay, that's good. We hire another chef, that would make the design process easier. But if the with over time if the consumer base started increasing, so is it the better option that you hire like 5 to 6 chefs depending on के कितने ज्यादा आपके कस्टमर्स हैं? आई डोंट फील कि इससे बिजनेस को कुछ ज्यादा फायदा होता है। रीजन बीइंग ये कि कंज्यूमर जो आपके प्रोडक्ट से अगर सेटिस्फेक्शन उसको मिल रही है तो ऑब्वियसली उसकी बेस इंक्रीज करेगी,
बट अगर आप साथ साथ अपने अगर उस प्रोडक्ट को स्केल करने के लिए आप हायरिंग करते जाएंगे और नए लोगों को चीज़ बार बार नए सिरे से ट्रेन करते रहेंगे, तो ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपकी जो बेस है वो किसी उसी बंदे के पास मौजूद है जिसने स्टार्ट किया था। जैसे जब आपका जो फर्स्ट शेफ होगा उसके पास वो रेसिपी है, वो आगे ट्रांसफर करेगा करेगा फिर तीसरे तक वो बात जाएगी, तो कंसिस्टेंसी आपको कहीं ना कहीं लैक मिलेगी उसमें। अब इसको स्मार्टली करने का क्या तरीका है? वेल, इसको स्मार्टली करने का तरीका ये है कि यू शुड मेक अ ब्लू बुक, और आई वुड से कि इन ब्लू केक के केस में ऐसी बुक जिसके अंदर आपके सेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, उसकी रेसिपी, उसका असेंबली प्रोसेस, उसकी स्टोरी लाइन कि उसको किस तरीके से क्रिएट करना है, और कस्टमर सर्विस यानी ऑब्वियसली हाउ टू कैटर योर कस्टमर्स एंड मोर, द ऑल सेट ऑफ गाइडलाइंस जो कि इस बुक के अंदर मौजूद होनी चाहिए। बिफोर यूजिंग दैट बुक यू वुड सी कि आपकी डिजाइन के अंदर कंसिस्टेंसी लैक कर रही थी। जैसे अगर इन तीनों एग्जाम केक्स के अंदर अगर आप देखें तो फर्स्ट केक जो है वो इस थर्ड लाइन से उसकी बेस नीचे फॉल कर रही है, सेकंड वाला आपको लाइन के ग्रिड के अंदर जो है फॉल करता हुआ नजर आ रहा है, थर्ड केक के अंदर आपको वही कंसिस्टेंसी फिर से ब्रेक होती मिल रही है कि वो केक का साइज बेस की बजाय अपर बेस का जो है वो साइज इंक्रीज हो गया, तो जिसकी वजह से इनकंसिस्टेंसी और स्केलेबिलिटी में आपको प्रॉब्लम आएगा नजर। बट ब्लू बुक के बाद आपने जब इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया और इस कंपोनेंट्स की एक स्पेसिफाइड गाइडलाइंस के मुताबिक साइजिंग, पैलेट, हर चीज डिफाइन कर दी, then you wouldn't be able to see that inconsistency. Now you see that all the cakes are of the same sizes, of the same colors, and there is no inconsistency. All the ingredients that are being used in these cakes are the same. But now using this approach आप different products को create कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि आपके प्रोडक्ट्स चाहे वो स्टार्ट आपने एक शायद केक से किया होगा, बट उसके बाद उसकी मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर उसी केक को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि रेसिपी आपको एक ब्लू बुक की फॉर्म में मिल गई है। यही एग्जांपल आपको डिजाइन सिस्टम को मिलती है। दिस इज द व्हाट इज डिजाइन सिस्टम इज ऑल अबाउट। ओके, सो what companies use design system? Yes, majority of the companies like Google, जो top companies में से आती है, Google, Apple, Microsoft, Atlassian, Uber, Shopify, they all have a specific design system. Like Google has its own material design system in UI design, Apple has its own, Microsoft has a Fluent design system, Uber has its own Uber design system. Specifically इसी तरह हर कंपनी का अपना एक डिजाइन सिस्टम होता है जो कि अपनी प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। Now the design system has a specific voice and tone, a design kit where we use a specific software to make that design, and the components or the patterns which are combined to make that whole design system. Okay, so atomic design system is the की डिजाइन सिस्टम जो कि एटम से स्टार्ट होके मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होती है चीज, फिर ऑर्गेनिजम्स, फिर टेम्पलेट्स और पेजेस। एटम्स, इसकी ऐसी एग्जांपल आप ले लें जस्ट फॉर फ्रॉम द क्यूज फ्रॉम द बायोलॉजी, कि आपका स्टार्ट एक सेल होता है, फिर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, और फिर वो मिलके पूरा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाता है। एटम की अगर बात करूं तो आपकी कलर थीम, टाइपोग्राफी, आइकॉनोग्राफी, ग्रिड सिस्टम, ये सब इसके एटम के अंदर अगर हम इसको ब्रेक करें वो स्टार्ट वहां से होगा। Then we'll move to the molecules. These atoms combine to make the molecules, like the buttons, tabs, etc. All these are made from the color theme, typography, grid, जिसमें आपके ड्रॉप डाउन मेन्यूज, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। ऑर्गेनिजम्स आपका नेविगेशन बार्स, टैब, वीडियो प्लेयर्स, ये मिलके एक कंप्लीट डिज़ाइन सिस्टम बनाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी गूगल की, गूगल हैज़ इट्स ओन डिज़ाइन सिस्टम, दैट इज़ अ मटेरियल डिज़ाइन सिस्टम. It has its own purpose and shared values. I would skip this part because we are already late due to some technical issue which I had, which I'm very sorry about. So I'll just move on with the advantages why we use the material design system to make a stable and minimal guidelines, make the component structure to easily integrate in our design, obviously ready to use. There are few tools which we use in making our design consistent. The first one is Figma.
Sketch, Adobe XD, and InVision. Now, the tool which we are going to use while doing our practical exercise would be Figma, since it's a very collaborative tool. आप इसको Teams में भी use कर सकते हैं. It's easily available. It's free to use as well. आप इसको log in करके अपना account create करके easily use कर सकते हैं. ठीक है. So let's begin with the practical exercise where I'll show you the design system. I'll just close my screen over here and just begin sharing my Figma screen. Just give me a few seconds. Okay, so meanwhile, as Salan is opening the Figma, I would request all of you guys, if you guys want to do a hands-on practice on it, you guys can also open it. And once you guys are done with it, you guys can write done in the chat section. Okay. Great. I think everyone has opened it. Salan, if you are speaking something, your mic has been muted. Okay, sorry, my mic has just I've just turned on my mic. Okay, so I'm sharing my screen, a Figma link which I've just opened. I'll just start off with an example, जो कि एक डिज़ाइन सैम्पल है जो इनिशियली मैंने क्रिएट किया है. डिज़ाइन सिस्टम आपको अगर इनिशियल स्टार्ट लेते हैं तो वो फॉन्ट सिलेक्शन से होता है. फॉन्ट्स एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है आपके डिज़ाइन का. वो चाहे आपका डिज़ाइन, अगर मैं एक डिज़ाइन स्क्रीन्स अगर आपको दिखाऊं जो मैंने सैम्पल के तौर पे क्रिएट किए हैं, सैम्पल में आपको नज़र आ रहा होगा कि जो स्क्रीन्स हैं चाहे वो ऑनबोर्डिंग की हैं या फिर आपका लॉगिन साइन अप की स्क्रीन्स हो गई या आपका जो होम स्क्रीन का टैब है, यहाँ पर आपको डिफरेंट स्क्रीन्स में डिफरेंट साइजिंग और कंसिस्टेंसी नज़र आ रही होगी. लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिफाइन हो आपका डिज़ाइन सिस्टम कि आप कौन से फॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं, टाइपोग्राफी यूज़ कर रहे हैं, कौन सी साइजिंग की टाइपोग्राफी कहाँ पे यूज़ करनी है और किस तरह यूज़ करनी है. दिस शुड बी द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द डिज़ाइन आपको नज़र आए. जैसे कि अगर यहाँ पे आप स्किप का बटन देखें तो वही स्किप का बटन आपको इस टैब के ऊपर भी नज़र आएगा, सेकंड टैब के ऊपर जिसमें ऑनबोर्डिंग का टैब है, थर्ड के ऊपर भी. और ये सारी कंसिस्टेंसी आपको एक तीनों स्क्रीन्स के ऊपर नज़र आएगी, जहाँ पर आपकी हेडिंग्स का टैब जो स्क्रीन्स हैं वो जो टाइपोग्राफी है और इसी तरह आपके जो नीचे डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट है, मोर और लेस ये सब चीज़ें आपको कंसिस्टेंट नज़र आ रही है. रीज़न बीइंग ये कि हमारा डिज़ाइन सिस्टम हमने ऑलरेडी प्री डिफाइन किया हुआ है. We have used Poppin font after careful selection. ये डिपेंड करता है कि आपका जैसे मैंने यहाँ पे Poppin सेलेक्ट किया, रीज़न बीइंग कि it's a very crisp font. We usually use this font specifically when जैसे कि आप ऐसी स्क्रीन्स जो कि जहाँ पर यूज़र की इंगेजमेंट ज़्यादा हो, जैसे फूड पांडा और इस तरह की एप्लीकेशंस होती हैं, ऊबर की एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप यूजली सेरिफ फॉन्ट्स यूज़ करते हैं ताकि यूज़र को क्लैरिटी हो कि वो एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन तक जा रहा है तो उसको टेक्स्ट पढ़ने में कोई इशू ना हो. पॉपिन्स एक ऐसा फॉन्ट है जो कि आपको उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी नज़र आती है. दैट्स व्हाई आई हैव सिलेक्टेड दिस फॉन्ट एज वेल.
नाउ द सेकेंडरी पार्ट इज कि आपको डिफाइन आप करते हैं कि आपके साइजिंग क्या होगी। जैसे टाइटल टेक्स्ट के लिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आई हैव यूज 28। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर एन एप्लीकेशन डिज़ाइन जो कि मोबाइल एप्लीकेशन है। और मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर आपको ये चीज़ देखना होता है कि ऑब्वियसली जब आप वेब पोर्टल के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे साइजिंग वेरी करती है। वहाँ पे आपका हेडिंग टेक्स्ट जो है वो इंक्रीज होता है क्योंकि आप एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर चीज़ को व्यू कर रहे होते हैं। बट एप्लीकेशन के अंदर आपकी स्क्रीन साइज भी छोटा होता है और साथ आप अगर बहुत बड़ा फॉन्ट यूज़ कर लेंगे तो आपका एरिया जो है वो स्क्रीन का काफ़ी ज़्यादा उसकी वजह से कवर अप हो जाता है। तो दैट्स व्हाई वी यूज़ फॉन्ट जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल भी हो और साथ-साथ का एरिया भी उतना ही कंज्यूम करे जितना एक इम्पोर्टेंट एक जनरल अगर फिजिबल इसकी टेक्स्ट गाइडलाइंस अगर आपको देखनी हो तो आप यू कैन इजीली चेक दिस ऑन गूगल एज़ वेल, जहाँ पर एक कंप्लीट सेट ऑफ टेक्स्ट गाइडलाइंस आपको मिल जाएंगे। टेक्स्ट कितना साइज का होना चाहिए, बेस टेक्स्ट कितना साइज का होना चाहिए, सब चीज़ें आपको अब यहाँ पर अगर मैंने प्री डिफाइन चीज़ें की हुई हैं आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने टाइटल टेक्स्ट का साइज 28 डिफाइन किया है विद बोल्ड। टाइटल फीचर का टेक्स्ट जो है वो 20 पे रखा है, सेट किया है। हेडिंग्स की अगर मैं बात करूँ आई मेड 3 कैटेगरीज वेयर इज इट स्टार्ट्स फ्रॉम 22, 18 टू 14। और उसके बाद जो आप अपने अंदर का डिस्क्रिप्शन कंटेंट लिख रहे हैं वो या सब टेक्स्ट या पैराग्राफ की फॉर्म में वो 10, 12, 14 और 16 पॉइंट्स तक मुख्तलिफ वेट्स के साथ मैंने असाइन किया हुआ है। टैब्स की अगर बात करूं जो टॉप टैब्स आपको नजर आ सॉरी I'm really sorry for interrupting, Arsalan. I just wanted to confirm that if the thing that you have generated on the Figma is really good, and if it's not confidential, can you share it with our audience? Like, अगर इसका link हमारी audience के साथ share होता तो वो आप edit की access ना दें, like जी अगर वो देख सकते हैं, क्योंकि I feel like कि हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि बाद में इसके वो स्टडी करना चाहेंगे। तो लाइक अगर इस फिग्मा का लिंक आप हमारे साथ अटैच कर दें, दैट वुड बी रियली गुड, लाइक जस्ट इन चैट्स, नॉट इन पर्सनल. Secondly, someone is asking a question that if you want to use the Urdu text, can we use the Urdu text in the Figma as well? So just यस श्योर जी श्योर मैं फाइल का लिंक शेयर कर देता हूँ। दैट्स नॉट इशू। जैसे डिज़ाइन सैम्पल टेक्स्ट है तो दैट वुडंट बी अ प्रॉब्लम, मैं आपके साथ इसको शेयर कर देता हूँ। बाकी रही बात उर्दू टेक्स्ट की तो यस वी कैन यूज़ उर्दू टेक्स्ट। इनिशियली तौर पे पहले तो फिग्मा में ये ऑप्शन मौजूद नहीं थी, बट रिसेंट अपडेट के बाद आपको ये चीज़ फील होगी कि अब ये चीज़ विजिबल है। अब आप चाहे उर्दू टेक्स्ट को यूज़ करना चाहें या फिर कोई और लैंग्वेज के अंदर अपने टेक्स्ट को यूज़ करना चाहें, आप इजीली उसको कर सकते हैं। तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो अब फाइल का लिंक मैंने शेयर कर दिया है, यू गाइस कैन इजीली चेक दिस आउट। सो शुड आई कंटिन्यू विद द स्लाइड्स एज वेल? ओके, yeah. So the next thing is the color palette. Color okay, just a palette. second. It's just a request for all, from all the audience that please don't interrupt while he is working on it. आप लोग इसको बाद में आराम से तसल्ली से देख लीजिएगा. I have just मैंने इसलिए शेयर करवाया ताकि आप लोगों को बाद में मसला ना हो. Meanwhile he is working on it, कोई भी इसके ऊपर जाके पंगे ना करे, ठीक है, ताकि वो सुकून से अपना काम प्रेजेंट कर सकें. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay. So the next thing is color palette. Color palette is very important part of the design system as well. जब भी आप कोई डिज़ाइन सिस्टम क्रिएट करते हैं तो टाइपोग्राफी के बाद जो सेकेंडरी प्रेफरेंस होती है वो आपके कलर्स की होती है। अब कलर को भी हम कैटेगराइज करते हैं 3 कैटेगरीज के अंदर। एक आपके प्राइमरी कलर्स होते हैं जो कि आप अपने डिज़ाइन की ब्रांड से रिलेट करते हैं उसको। ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आपका जो पूरा प्रोडक्ट होता है या उसका ब्रांड होता है वो उस पर डिपेंडेंट होता है कि वो किस तरीके से चीज़ जो है ना आप अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करवाना चाह रहे हैं। वो चीज़ आपको उसके प्रोडक्ट के लोगो के अंदर भी नज़र आती है, आप की प्रोडक्ट की ओवरऑल ब्रांडिंग के अंदर भी नज़र आती है। तो जो चीज़ भी आपने प्राइमरी प्रेफरेंस के ऊपर रखनी होती है, जो कि आप प्रोडक्ट की ब्रांड को जिससे डिफाइन करते हैं, दोज आर प्राइमरी कलर्स। नाउ द सेकेंडरी कलर्स आर दोज कलर्स जो कि हमने अभी अपने इस प्रोडक्ट के अंदर तो यूज़ नहीं किए, बट मेजॉरिटी जिस तरह मैं गूगल की बात करूं तो गूगल हैज़ बीन यूजिंग इट्स मटेरियल डिज़ाइन सिस्टम जिसके अंदर
वो अपने प्राइमरी के साथ सेकेंडरी, टर्शरी और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को भी यूज कर रहे हैं, बिकॉज इट हैज़ अ वेरी ह्यूज डिज़ाइन सिस्टम, जहाँ पे गूगल जो है वो, अगर आप उसके लोगो के अंदर भी देखें तो आपको नजर आएगा कि वो मल्टीपल कलर्स को यूज करें, कलर पैलेट्स को यूज कर रहे हैं। तो प्राइमरी के साथ कॉम्प्लीमेंटिंग कलर जो है वो सेकेंडरी और टर्शरी कलर हो सकते हैं। फिर इसमें जो एक बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है वो ये होती है कि कलर्स के आप शेड्स को भी डिफाइन करते हैं साथ साथ। जब आप एक प्राइमरी कलर को लेते हैं, जैसे सपोज हमने यहाँ पर ऑरेंज कलर को लिया है फॉर डिफाइनिंग आवर ब्रांड आइडेंटिटी, तो उसके शेड्स को भी साथ साथ डिफाइन किया है। वो उसके लाइट टोन्स के अंदर भी शेड्स हम डिफाइन करते हैं और इसी तरह उसके डार्कर टोन्स की तरफ भी उसको डिफाइन करते हैं। रीजन बीइंग ये कि कलर्स जो हैं वो मुख्तलिफ कंडीशंस के अंदर, मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर आप यूज कर रहे होते हैं, आइदर शोइंग योर प्राइमरी एक्शंस, और इसके अलावा अगर देखें तो आपके जहां पर भी कोई मैसेज अगर आपने यूजर को नोटिफाई करना है या कहीं कोई टैब्स हैं उनके अंदर अगर आपने लाइट टोन में उस कलर को यूज करना है, तो उसके शेड्स को आप उसके मुताबिक डिफाइन करते हैं। वंस तक प्राइमरी कलर्स आर प्री डिफाइंड और आप उसको डिफाइन कर लेते हैं, देन आप मूव करते हैं न्यूट्रल कलर्स की तरफ। न्यूट्रल कलर्स का क्या रोल होता है कि न्यूट्रल कलर्स जो है वो आपको बेसिकली बैकग्राउंड के अंदर आप उनको यूज कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें अपनी डिजाइन स्क्रीन्स के ऊपर, तो बैकग्राउंड के अंदर अगर आप देखें तो ये आपका अगर डीसी डिजिटल शेफ जो हमारा प्रोडक्ट है, इसके जो बैकग्राउंड पे कलर है वो वाइट है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं सपोज ब्लैक के अंदर, तो आप नोट करिएगा कि हमें फिर साथ ही अपनी टाइपोग्राफी को भी स्केल अप करके वाइट पे करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर हम डार्क मोड में इसको कन्वर्ट करके बना रहे हैं, ठीक। तो ये चीज जो भी आपका प्राइमरी ब्लैक या बैकग्राउंड कलर होता है, चाहे वो डार्क टोन में है या लाइट टोन में है, वो आपको पहले से अपने डिजाइन सिस्टम के अंदर प्री डिफाइन करना होता है। जैसे अगर हमारा मेन डार्क स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो उसके भी हमने शेड्स ग्रेज में और वाइट तक उसको लेके जाना, ताकि अपना बैकग्राउंड जो कलर है हम उसके मुताबिक एडजस्ट कर सकें। सिमिलरली जब आप प्राइमरी एक्शंस जो आपके कलर्स होते हैं, उसके बाद न्यूट्रल कलर जब आप डिफाइन कर लेते हैं, तो थर्ड थिंग इज कि आप अपने एक्शन कलर्स को डिफाइन करते हैं। अब एक्शन कलर्स जो है वो बेसिकली जो भी आपके, जैसे सपोज आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया और उसमें एक्शन में आपको सक्सेस हुई है, तो वो ग्रीन से आप जैसे प्री डिफाइन कर देते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन आपने शो करनी है अपने यूजर को, वो आप ब्लू से डिफाइन कर सकते हैं। कोई ऐसी वार्निंग साइन या वार्निंग नोटिफिकेशन आपने यूजर को देना है, वो येलो कलर के साथ नोटिफाई हो सकता है। और जस्ट इन केस अगर आपका यूजर कोई लॉगिन पासवर्ड साइन अप करते हुए या साइन इन करते हुए कोई एरर करता है या उसका फॉरगेट पासवर्ड होता है, तो वो रेड कलर के साथ आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो यूजर है उसको पहले से पता हो कि आपके डिजाइन सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि साथ साथ आपको कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं थ्रू आउट द डिजाइन, और वो उसको जैसे ही वो कलर पॉप इन होता है वो पहले ही समझ जाए कि अच्छा ये एरर जो है ना अभी हाईलाइट हो गया है, या वार्निंग साइन आ गया है, या इंफॉर्मेशन जो है ना वो मुझे प्रोवाइड कर रहा है यूजर, वो कलर से ही पहले ही डिफाइन हो जाती है चीज। अच्छा, सिमिलरली जब हमारे टेक्स्ट भी डिफाइन हो गया, कलर पैलेट भी हमने बना लिया, अब हमारा थर्ड पार्ट क्या आता है? थर्ड पार्ट होता है हमारा डिजाइन कंपोनेंट्स। डिजाइन कंपोनेंट्स बेसिकली आप जो भी डिजाइन बना रहे हैं उसके अंदर आप उसकी जो जो बटन्स आपने यूज करने हैं उसकी आप साइजिंग डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद उसकी स्टेट्स को डिफाइन करते हैं। उन स्टेट्स के अंदर जैसे सपोज एक बटन एक्टिव स्टेट के ऊपर है, जैसे अगर आप यहाँ पे सेकेंडरी में देखें तो आपका जब बटन नॉन एक्टिव स्टेट में था तो उसके अंदर आपको टिंट नजर नहीं आ रहा बैकग्राउंड में। जब जैसे ही यूजर ने उस पर हॉवर किया या क्लिक किया तो उसके बैकग्राउंड पे आपको एक स्मॉल सा लाइट सा टिंट नजर आना शुरू हो गया पर्पल का। वो यूजर को बताता है कि आपने अब ये एक्शन परफॉर्म कर लिया है, जिसके वजह से यूजर को फौरन एक क्लैरिटी हो जाती है। वरना अगर आप ये चीज नहीं शो करेंगे तो यूजर को क्लैरिटी नहीं हो सकेगी उस चीज के ऊपर। सिमिलरली अगर आपने कोई टॉगल स्विच लगाया हुआ है तो यूजर जब उस पर क्लिक करता है तो क्लिक करने पे एक और एक्शन होगा, जब उसको अभी उस पर उसने क्लिक नहीं किया तो उसके वक्त वो जिस तरीके से डिस्प्ले हो रहा होगा वो सब आपको साफ शो होता रहेगा। सिमिलरली अगर आपने बहुत से फॉर्म्स फिल किए हो तो आपको नजर आता है वहां पर कि आपको चेक बॉक्सेस नजर आते हैं, जिसपे आप क्लिक करते हैं तो टिक अंदर फिल हो जाता है, जब उसको आप अनक्लिक करते हैं तो टिक गायब हो जाता है।
रेडियो बटन्स की आपको एग्जांपल देखें तो वहाँ पर भी ये होता है कि आपको अगर 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से अगर आपने एक सिलेक्ट करनी है, तो उस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके पास वो फिलर के साथ फिल हो जाएगा। इसी तरह और बहुत से एक्शन है, जैसे नोटिफ़िकेशंस के एक्शन आपको नज़र आते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं। कोई एडिट की ऑप्शन हो, तो उसके अंदर आपको बहुत से बटन्स के ऊपर एक्शंस देखने को मिलते हैं। इसी तरह अगर नोटिफ़िकेशन की बात करूँ, जैसे हमने पहले प्री डिफ़ाइन किया था कि ग्रीन कलर आपका जो है ना कोई भी सक्सेस को आपको हाइलाइट कर रहा है। रेड कलर जो है ना कोई एरर अगर आपका आ जाता है तो उसको डिफ़ाइन कर रहा है। येलो कलर इट्स लाइक कि आप बेसिकली बता रहे हैं यूज़र को कि कॉशनेस कोई उसने एक्शन किया है तो वो उससे रेलेवेंट है। इन्फॉर्मेशन कोई प्रोवाइड करनी है यूज़र को तो वो ब्लू से हमने डिफ़ाइन किया। तो आप देखें ये नोटिफ़िकेशंस के अंदर जो हमने टैब्स बनाए वो भी बिल्कुल एज़ इट इज़ उन्हीं स्टेट्स के मुताबिक बनाए। कि जैसे एक हमने यहाँ पर एक कंपोनेंट सेट क्रिएट कर लिए जिसके अंदर हमने स्टेट्स डिफाइन कर दी हैं वेरिएबल्स की फॉर्म में। यानी यहाँ पे 4 स्टेट्स हैं हमारे पास और चारों स्टेट्स अलग-अलग मैसेजेस और अलग-अलग कलर पैलेट के साथ उसको कॉम्प्लीमेंट करें, जो कि हमने पहले से अपने डिज़ाइन सिस्टम के अंदर यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें ये तो आपका डिज़ाइन सिस्टम वो है जो कि आप इनिशियली तौर पे क्रिएट करते हैं। पहले आप एक डिज़ाइन सिस्टम बनाने से पहले ये वो चीज़ है जो आप अपने पास फिग्मा के ऊपर इनिशियली तौर पे क्रिएट करते हैं और उसके बाद आप उसको अपने डिज़ाइन सिस्टम को फिग्मा के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। फिग्मा के अंदर इनकॉर्पोरेट करने के लिए आप के पास यहाँ पर अगर अपनी स्क्रीन पे राइट साइड पे जहाँ पे आपको मेरा माउस नज़र है, यहाँ पे है कि आपके पास लोकल वेरिएबल्स और लोकल स्टाइल्स दोनों मौजूद हैं। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको विज़िबल हो कि ये सारे कलर पैलेट्स मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डिफ़ाइन किए हुए हैं प्रिमिटिव्स के यानी वेरिएबल्स के अंदर। अब मेरा कलर के जो शेड्स जो कि मैंने यहाँ पर अपनी फिग्मा की स्क्रीन के ऊपर इनकॉर्पोरेट किए थे, वो मैंने सिमिलरली यहाँ पर ऐड भी किए हुए हैं, ठीक है? ग्रेस के चाहे वो मेरे शेड्स हैं या फिर मेरी कलर के स्टेट्स के शेड हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन, सक्सेस, वार्निंग, एरर ये सब यहाँ पर डिफाइंड हैं। जो मेरे ब्रांड के कलर्स हैं वो भी मैंने डिफाइन किए हुए हैं। सिमिलरली जो ग्रेज और लाइट्स के मेरे शेड्स हैं वाइट कलर या ब्लैक के अंदर वो भी डिफाइंड हैं। ओपेसिटीज़ जो कि मैंने अब देनी है स्टार्टिंग फ्रॉम 10% टिल 100% वो भी डिफाइंड है। इसी तरह आप देखें तो एंड तक आपको बॉर्डर रेडियस तक सब चीज़ें आपको डिफाइंड मिलेंगी। फिर मेरे टोकन्स पे अगर मैं जाऊँ, तो वही चीज़ें अगर मैंने मुख्तलिफ मोड्स में जैसे कि मैंने लाइट मोड यूज़ किया हुआ है, तो लाइट मोड के अलावा अगर इंक्लूसिव डिज़ाइन क्रिएट करना है तो आपको उसके ऊपर डार्क मोड के ऊपर अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है तो डार्क मोड के ऊपर कौन-सी टेक्स्ट यूज़ होगा, बैकग्राउंड कलर कौन-सा होगा, वो आप उसके मुताबिक चेंज कर लेते हैं। ओपेसिटीज़, डिस्काउंट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ये सब इसके ऊपर ऑलरेडी डिफाइंड मैंने की हुई। सिमिलरली अगर मैं लोकल स्टाइल गाइड्स के ऊपर जाऊँ तो आपको नज़र आएगा कि मेरा जो टाइपोग्राफी थी, वो टाइपोग्राफी भी मैंने अपनी यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन की हुई है। जैसे कि आपका जो टाइटल टेक्स्ट है, वो जैसे मैंने यहाँ पर अगर देखें मेरी स्क्रीन के ऊपर तो 28 बोल्ड यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है राइट साइड टैब के ऊपर। हेडिंग के फ़ॉन्ट्स डिफाइंड हैं, कंटेंट के अंदर जो-जो फ़ॉन्ट की कैटेगरीज़ हैं, ये सब कैटेगरीज़ मैंने ऑलरेडी प्री डिफाइन कर दी हैं, ताकि जब भी मैं अपने डिज़ाइन के ऊपर जाऊँ, तो जैसे यहाँ पर क्लिक करें तो मुझे ये ना हो कि मुझे हर दफ़ा इसका फ़ॉन्ट जो है ना यहाँ से सिलेक्ट करना पड़े और स्टार्ट से जैसे अगर सपोज़ यहाँ पर डिज़ाइन सिस्टम इम्प्लीमेंटेड नहीं है स्क्रीन के ऊपर, तो मुझे यहाँ से हर दफ़ा फ़ॉन्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसकी साइज़िंग सेट करनी पड़ेगी, उसके बाद उसका क बोल्ड, मीडियम, रेगुलर जाके चेक करना पड़ेगा कि ये ऑलरेडी कंसिस्टेंट है या नहीं। बट अगर मेरा डिज़ाइन सिस्टम डिफाइंड है तो मैं सिर्फ़ यहाँ पर ये जो 4 एप्लाइड स्टाइल्स का बटन है इस पे क्लिक करूँगा और जो मेरी स्टाइल गाइड है जो मैंने प्री डिफाइंड की हुई है वो यहाँ पर मुझे शो हो जाएगी टाइपोग्राफी की। अब अगर सपोज़ मैंने यहाँ पर 20 बोल्ड सेलेक्ट किया तो ये देखें मैंने इस पे जस्ट क्लिक किया और ये यहाँ पर मुझे अपनी गाइडलाइंस के ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, ठीक है? ये आपकी लोकल जो स्टाइल गाइडलाइंस हैं टेक्स्ट स्टाइल्स की वो डिफाइन हो जाएँगी। सिमिलरली जो आपका बटन है, अब यहाँ पर अगर मैं लाइब्रेरीज़ में जाऊँगा, तो मेरे जो कलर्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, मैंने ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं अपने, वो यहाँ पर सब उन्हीं में से मैं अपना प्राइमरी बटन सिलेक्ट करूँगा और वो बटन यहाँ पर उसका कलर डिफाइन होके सिलेक्ट हो जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होता है डिज़ाइन सिस्टम के ऊपर ये चीज़ करने का कि जब आप चीज़ क्रिएट कर रहे होते हैं
इनिशियल 2-4 स्क्रीन्स आपने बनानी है तो तब तो शायद आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होता कि मेरे कलर्स या मेरी टाइपोग्राफी मुझे 1-2 दफ़ा चेंज करनी है, मैं कर लूँगा, इश्यू नहीं है। बट जब आपका एक पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट बनता है तो उसके ऊपर हंड्रेड्स ऑफ स्क्रीन्स होती हैं। तो जब हंड्रेड्स ऑफ स्क्रीन होंगी तो हर दफ़ा आप कहीं भी टेक्स्ट को कहीं फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करके डाल देंगे, कहीं 28 डाल देंगे साइज़, कहीं 26 डाल देंगे। तो या अपनी टाइपोग्राफी अगर एक जगह आपने पॉपिंस यूज़ की है, दूसरी जगह आप कोई और फ़ॉन्ट यूज़ कर लेंगे, इंटर का फ़ॉन्ट यूज़ कर लेंगे। तो एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए और हर जगह ये चीज़ कंसिस्टेंट रहे, जैसे कि सपोज़ यहाँ पर देखें तो फ़ॉन्ट का पॉपुलर कैटेगरी के लिए और फ़ॉन्ट डिफ़ाइन है, व्यू ऑल जो मेरा टैब का क्लिकेबल आइकन है उसकी फ़ॉन्ट और कलर डिफरेंट है। ये सब चीज़ें मैं पहले से अगर डिफ़ाइन कर लूँगा तो उससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे बार-बार वो चीज़ चेंज नहीं करनी पड़ेगी स्पेसिफ़िकली कस्टम पे जाकर, बल्कि मैं यहाँ से सिंपल टेक्स्ट स्टाइल्स में से एक बटन पे क्लिक करूँगा और मेरी वो चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी। ये बेसिकली आपकी जो है वो चीज़ को मेंटेन करता है। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है डिज़ाइन सिस्टम के अंदर कि आप अपनी स्पेसिंग को कंसिस्टेंट रखते हैं। जैसे कि सपोज़ अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ अपने ग्रिड सिस्टम की, तो हमारे पास जो एंड्रॉयड की स्क्रीन्स होती हैं, वो अराउंड उनका जो एक स्पेसिफिक साइज़ होता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर फ्रेम्स में जाएँ, तो आपको ईज़िली वो नज़र आ जाएगा कि जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पर फ्रेम पे क्लिक किया, मैं अब इस पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे बता देगा कि आपने कौन-सी फ्रेम को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि आपके पास एंड्रॉयड कॉम्पैक्ट, एंड्रॉयड मीडियम, ये साइज़ेज़ एंड्रॉयड की स्क्रीन्स के आपको गिवन है। अब इसमें से अगर आप कोई भी साइज़ को सिलेक्ट करते हैं, जैसे सपोज़ मैंने एंड्रॉयड कॉम्पैक्ट को सिलेक्ट किया, तो ये एंड्रॉयड की वो वाली स्क्रीन मेरे पास आ जाएगी जो कि जिस स्क्रीन साइज़ के मुताबिक हमने अपना एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना है। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर अपने अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं तो मेरे पास 360 बाय 800 के साइज़ की एक एंड्रॉयड की लार्ज स्क्रीन मौजूद है, जो कि जो बड़े मोबाइल होते हैं एंड्रॉयड की, उनकी स्क्रीन का साइज़ होता है। सिमिलरली जो स्मॉलर एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं जिनका 360 बाय 640 का साइज़ है, उनका भी यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा होगा कि उनकी पैडिंग डिफ़ाइन की हुई है। अब जो आपका सेफ एरिया है बेसिकली वो चीज़ डिफ़ाइन कर रहा है जहाँ जिसके अंदर रहकर आपने अपना डिज़ाइन को क्रिएट करना है। जो रेड साइड आपको नज़र आ रही है, ये वो पैडिंग है जिसको आपने स्पेसिंग के अंदर अपना कोई भी एलिमेंट इनकॉर्पोरेट नहीं करना। आइदर वो बटन हो, एक्शन बटन हो, प्राइमरी एक्शन हो, सेकेंडरी एक्शन हो, या आपके कोई भी डिज़ाइन का एलिमेंट हो, टेक्स्ट हो, टाइपोग्राफी हो, आपने उसके बीच में आपने इतनी पैडिंग जो 16 का मार्जिन है वो रखना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि आपकी जो गटर स्पेसिंग है वो 8 की होनी चाहिए और मार्जिन स्पेसिंग जो आपने दोनों बॉर्डर स्क्रीन के बॉर्डर पे रखनी है वो 16 की होनी चाहिए। सिमिलरली जो आईफ़ोन की स्क्रीन्स हैं उस पे डिफरेंट होगा, उस पे आपको मल्टीपल स्क्रीन साइजिंग के ऊपर आपको डिफरेंट जो है ना बॉर्डर रेडियस ने यहाँ पे भी 16 का मार्जिन हमने रखा है। इसी तरह जो एप्पल वॉचेज़ होती हैं, अगर आपने स्मॉलर बिल्कुल छोटे साइज़ के ऊपर जाना है, वहाँ पर आप दिखाएँगे कि किस जगह पे आपका जो मार्जिन एरिया है वो थोड़ा कम होता है, तो ऑब्वियसली आपको वही टैब्स दिखाने होंगे वहाँ पर, जहाँ पे यूज़र जो है ना वो ईज़िली नेविगेट कर सके। सिमिलरली आपके iOS की भी मल्टीपल स्क्रीन्स हैं, वो आप देख सकते हैं। तो अगर हम इस स्क्रीन के ऊपर इन स्क्रीन्स के ऊपर भी जाएँ, तो मैंने यहाँ पर अगर किसी एक स्क्रीन पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पर मैंने लेआउट ग्रिड लगाई हुई है, ठीक है? ये लेआउट ग्रिड क्या डिफ़ाइन करी अगर आप नोट करें तो यहाँ पर आपको साइड पे जो दोनों बॉर्डर्स आपको नज़र आ रहे हैं, 16 का जो मार्जिन मैंने रखा है, वहाँ पर आपको कोई आइकन, कोई टाइपोग्राफी नज़र नहीं आएगी। बट जो हमारे रेड जो टैब्स नज़र आ रहे हैं, उसके अंदर-अंदर उस मार्जिन स्पेस के अंदर ही आपको वो सारे डिज़ाइन एलिमेंट्स जो है ना वो फ्लोट होते नज़र आ रहे हैं। बल्कि इवन जो आपका प्राइमरी एक्शन टैब है, उसका भी साइज़ जो है वो बिल्कुल इसके एजेस के अंदर-अंदर ही आपको नज़र आ रहा होगा। स्पेसिंग भी देखें तो वो कंसिस्टेंट रखने के लिए हम ऑटो लेआउट्स को यूज़ करते हैं ताकि जो स्पेसिंग है वो बार-बार एडजस्ट ना करनी पड़े। हमें पता हो कि स्पेसिंग अगर हमने क्रिएट करनी है, जैसे यहाँ पर कंटिन्यू का टैब है, उसको सेंटर अलाइन किया है, दोनों साइड्स पे टैब जो हैं वो किस तरीके से मार्जिनली अलाइन किए हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ कंसिस्टेंसी बिटवीन आवर डिज़ाइन। सिमिलरली ऑनबोर्डिंग के अंदर भी आपको ये चीज़ नज़र आएगी। साइन अप स्क्रीन है, ऑनबोर्डिंग स्क्रीन्स हैं, इनके ऊपर आप अगर क्लिक करें तो आपको ईज़िली नज़र आ जाएगा कि मैंने ऑटो लेआउट ग्रिड जो है वो इनकॉर्पोरेट की हुई है, ठीक है? अच्छा,
अब हम थोड़ी सी एक स्मॉल सी एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देता हूँ आपको बताने के लिए। जस्ट हम बेशक एक नया टैब खोल लेते हैं, आप लोग अपने पास भी बेशक फिग्मा के ऊपर जो है वो कोई एक नया टैब खोल के एक सिंपल डिज़ाइन फाइल ओपन कर लें, ताकि हम जो है वो इस चीज़ को जो है मैं आपको थोड़ा सा बता के दिखा दूं एक दफ़ा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको इजीली वो चीज़ समझ आ जाए कि हमने कैसे क्रिएट करनी है। ओके, सो हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे एक फ्रेम से, जो कि हमारा फ्रेम साइज हमने सिलेक्ट किया है 360 बाय 800 का फ्रेम, जो कि यूजली एंड्रॉयड जो लार्ज एंड्रॉयड मोबाइल्स होते हैं उनका फ्रेम साइज होता है। अब इसके ऊपर अगर देखें तो मैंने जैसे लेआउट ग्रिड है उस पर मैं क्लिक करूंगा, जो मेरा ग्रिड सैंपल है उसको मैं यहाँ पे ओपन करके आपको दिखा भी देता हूँ साथ साथ कि मैंने कॉलम का सिलेक्ट किया और उसमें काउंट जो है मैं उसका 4 पे रख देता हूँ, जो मेरी मार्जिन स्पेसिंग है वो 16 की रख देता हूँ, और अंदर जो गटर स्पेसिंग है वो 8 की भी हो सकती है या 20 की, दोनों में से आप जिसके साथ फिजिबल हैं वो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे हमने बात की अपने डिज़ाइन सैंपल की, तो जब हमारे कलर पैलेट, जैसे सपोज मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ आपके टाइपोग्राफी और कलर्स को, ये मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट भी कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी डिफाइन की हुई हैं। वैसे तो जब आपकी ब्रांड गाइडलाइंस आप इनिशियली स्क्रैच से बनाते हैं तो तब तो आपको खुद एक दफ़ा कलर्स डिसाइड करने पड़ेंगे, बट जब आप अपना कोई भी कलर सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर उसको डिफाइन करने के लिए आपके पास यहाँ पर राइट साइड पे आपको लोकल वेरिएबल्स का एक टैब नज़र आ रहा होगा, जिसको क्लिक करने पर आपके सामने यूं एक स्क्रीन लोड हो जाती है। जब आप क्रिएट वेरिएबल पे जाते हैं तो आपको वो 4 कैटेगरीज दे रहा है, कलर, नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन। जब आप कलर पे क्लिक करते हैं तो आपके पास वो एक कलर क्रिएट करके दे देता है, ठीक है। अब आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज माई प्राइमरी कलर, ओके, आई हैव क्रिएटेड माई प्राइमरी कलर। अब मैं यहाँ से जो मेरा कलर था मैं ये यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, ये मेरा प्राइमरी कलर सिलेक्ट हो गया, ठीक है। इसी प्राइमरी कलर के मैं शेड्स मजीद ऐड कर दूंगा अपने ऊपर। अब ये क्योंकि हमारा फ्री वर्जन चल रहा है तो मे बी शायद इसमें हमारे पास ऑप्शन, बल्कि सॉरी है, हम इसी को कॉपी करते जाएंगे, 4-5 टैब्स बना लेते हैं इसके हम इसी तरह कलर पिकर से हम सिलेक्ट करते जाएंगे अपने प्राइमरी कलर्स को, और यहाँ पर साइड बाय साइड डिफाइन करते रहेंगे, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में भी दिखाया कि हमने किस तरीके से उसको डिफाइन किया, ठीक है। तो यहाँ पर लोकल वेरिएबल्स के अंदर जाकर आप अपने कलर्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इसके लाइट शेड अगर आपने डिफाइन किए हैं, सिमिलरली आप इसके डार्कर शेड्स को भी डिफाइन कर देंगे। जैसे ये कि हमने डार्क शेड डिफाइन कर दिया, ये दूसरा एक और शेड आपके पास आ गया, ठीक है। मल्टीपल शेड्स आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ओके। आप इनको नाम दे सकते हैं प्राइमरी 1, प्राइमरी 2, या ये मैंने जिस तरह दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइमरी लाइट हम दे सकते हैं, जो डार्कर शेड है उसको प्राइमरी डार्क कह सकते हैं आप। तो नेमिंग कन्वेंशंस के थ्रू, ताकि आपका जो भी डिज़ाइन क्रिएट हो वो जो आपका चाहे वो डेवलपर है, जब उसको डिज़ाइन को क्रिएट करेगा तो उसको यहाँ से वो डिज़ाइन सिस्टम ईजिली इंपोर्ट कर सके जेसन फाइल की फॉर्म में। सिमिलरली जब आप स्टाइल्स डिफाइन करते हैं, तो जैसे टेक्स्ट की बात करूं तो हमने अगर इनिशियल अपना टेक्स्ट साइज रखा है, हम यहाँ पे लोकल स्टाइल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर हम डिफाइन करेंगे जी अब हमारा हेडिंग फॉन्ट है, जैसे सपोज हेडिंग 1। अब हेडिंग 1 के अंदर हमारा पॉपिन्स हम फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, और जो इसका फॉन्ट साइज़ है वो 28 है। हमने यहाँ पर उसको सिलेक्ट किया बोल्ड में, और हमने ये स्टाइल क्रिएट कर दिया। अब हमारा हेडिंग के अंदर ये फॉन्ट क्रिएट हो गया। सिमिलरली हम मज़ीद इसको दोबारा से यहाँ पर अगर हेडिंग 2 हमने क्रिएट करनी है तो हेडिंग 2 क्लिक पे लिखेंगे, और फिर दोबारा हम पॉपिन्स पे जाएंगे। पॉपिन्स की अब हमने जो सेकेंडरी हेडिंग रखी है उसका साइज़ हमने रखा है लेट्स सपोज 24, और हमने इसका जो मीडियम बोल्ड की बजाय हम इसको मीडियम पे रखते हैं। मीडियम पे क्लिक कर दिया, ये हमारी हेडिंग 2 बन गई। इसको हम अगर ग्रुप करना चाहें तो हम इसको एक फोल्डर की फॉर्म में दे देंगे, जैसे कि ये हमारा फोल्डर बन जाएगा हेडिंग्स का, ठीक है। अब ये हमारी हेडिंग्स डिफाइन होगी। सिमिलरली हम हेडिंग्स डिफाइन करने के बाद अपनी डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट
और आइदर हम डिफाइन कर सकते हैं कि जस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर पैराग्राफ, लेट्स सपोज पैराग्राफ हम लिखते हैं, ठीक है, पैराग्राफ, ओके। पैराग्राफ के अंदर अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम वही पॉपिंस यूज करें, 14 का फॉन्ट कर लें क्लिक सपोज, और फिर उसको हम इसी तरीके से यूज कर लें रेगुलर साइज के अंदर, ओके। अब हमने क्रिएट किया, अभी हमारी एक और डिस्क्रिप्शन फॉन्ट की। इस तरह जैसे अगर आप एग्जांपल में देखें जो डिजाइन सैंपल दिए, यहाँ पर मैंने ये चीज कंप्लीटली स्टार्ट से सारी क्रिएट की हुई है। अगर आपको यहाँ पे टैब में नजर आ रही हो, टाइटल टेक्स्ट, हेडिंग, कंटेंट, टैब्स का साइज, बटन्स का साइज, ये सारा डिफाइन है। सिमिलरली आप लोकल वेरिएबल्स के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर सरफेस टेक्स्ट, टेक्स्ट साइज, आइकन, स्ट्रोक्स, बटन्स, ग्रेडियंट्स, ये सब चीजें भी आपको यहाँ पे विजिबल नजर आएंगी। ये आपका डिजाइन सिस्टम जो आपने क्रिएट किया है वो आप उस तरीके से उसको शो कर सकते हैं। अच्छा, अब बहुत से लोगों का यहाँ पर सवाल ये होगा कि एक डिजाइन सिस्टम बनाने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा कि एक एक चीज को आप डिफाइन करेंगे, क्लिक करेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे। यस, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, क्योंकि इसी डिजाइन सिस्टम के ऊपर आपका ओवरऑल प्रोडक्ट जो है ना उसकी रिलायबिलिटी होती है। बट इसमें कुछ प्लगइन्स हैं जिनको आप यूज करके अपने प्रोसेस को आसान कर सकते हैं या जल्दी खत्म कर सकते हैं। जैसे टाइप स्केल्स के नाम से एक प्लगइन है जो मैं यूज करता हूँ फॉर टाइपोग्राफी। जैसे सपोज मैंने कोई टाइपोग्राफी सिलेक्ट की है, अब मैं उसका साइज करना चाहता हूँ, सपोज 11.4 किया, ये मेरी टाइपोग्राफी है, मैं इसको जनरेट करूंगा, ये मेरे पूरी टाइपोग्राफी की किट जो है ना मुझे जनरेट करके दे देगा। अब इसको मैं चाहे अपनी तरफ से डिफाइन कर लूँ, करके जो मैंने चाहे पॉपिंस रखना है या कोई और उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। सिमिलरली कलर पैलेट जनरेट करने के लिए भी मेरे पास बहुत से प्लगइन्स एआई के मौजूद हैं, जैसे कि कलर व्हील पैलेट जनरेटर है हमारे पास। फाउंडेशन कलर जनरेटर पे अगर एक प्लगइन है, अगर आप इसको यूज करें तो ये आपके पास पूरी एक जो आपकी प्राइमरी कलर या जो भी कलर आप सिलेक्ट करते हैं आपने, जैसे मैंने सपोज यहाँ पे टॉर्क्वाइज कलर सिलेक्ट किया फॉर माय ब्रांड। अब मैं इसको क्रिएट स्टाइल पे क्लिक करूंगा और पैलेट पे क्लिक करूंगा तो ये देखें मेरा पूरा कलर पैलेट इसने बना के मुझे दे दिया इसके शेड्स के साथ। तो अब ये कुछ प्लगइन्स हैं जिनके थ्रू आप अपना प्रोसेस जो है ना, जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, उसको आप उस प्रोसेस को शॉर्टन अप कर सकते हैं, ठीक है। ये कलर्स और ये जो मैंने यहाँ पे स्टाइल्स ऐड किए हैं ये फाउंडेशन कलर जनरेटर से, वो मेरे यहाँ पर स्टाइल गाइड के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड भी हो गए हैं। सिमिलरली कुछ वेबसाइट्स भी अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल दूं, जैसे टेल विंड एक वेबसाइट है जिसके ऊपर टेल विंड कलर पैलेट जनरेटर, टेल विंड कलर पे अगर आप लिखें तो आपको नजर आएगा कि टेल विंड CSS कलर जनरेटर। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी अगर आप सपोज कलर डिफाइन करते हैं, लेट सपोज मैंने टॉर्क्वाइज कलर अपना रखा था, तो टॉर्क्वाइज कलर के अंदर जैसे ग्रीन मैंने डिफाइन किया तो उसके मुताबिक ये आपको शेड्स बता देता है। इनको आप सेव कर सकते हैं, साथ आपको विजेट्स के ऊपर डिज़ाइन किस तरीके से डिस्प्ले होगा वो भी आपको ये साथ साथ बताता रहता है, ताकि आपका कंट्रास्ट रेशियो जैसे आपने सिलेक्ट करना है आप वो भी चेक कर सकेंगे कौन सा कलर जो है वो किस तरीके से मेरे डिज़ाइन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट करेगा या नहीं। फिर इसी टेल विंड कलर का जो है आपको प्लगइन भी इन्होंने इनका आपको मिल जाएगा, फिग्मा का प्लगइन भी इनका मौजूद है, जिसके ऊपर अगर आप जाएं तो आपका वो कलर जनरेट करके आपको दे देता है। ये इनकी जो है कम्युनिटी फाइल भी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये कुछ प्लगइन्स हैं जो कि आपके प्रोसेस को आसान कर देते हैं। कूलर्स के नाम से अगर आप इसी तरह एक वेबसाइट के ऊपर अगर जाएं तो ये वो वेबसाइट है जो कि आपके कंट्रास्ट रेशियो अगर आपने चेक करना हो अपनी वेबसाइट का वो आप चेक कर सकते हैं। ये आपको कलर पैलेट्स जनरेट करने में भी हेल्प करेगा। जैसे सपोज मैं एक स्टार्ट दी जनरेटर करता हूं तो ये आपके कलर पैलेट स्पेस बार जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये देखें ये कलर आपके मल्टीपल जनरेट, यहाँ से आपको कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं। इसी तरह कूलर्स की एक और कंट्रास्ट रेशियो की जैसे मैंने बात बताई आपको, तो यहाँ पर अगर हम जाएं, सॉरी मैं आपको दोबारा से इसका कंट्रास्ट रेशियो दिखाता हूँ। ये सामने अगर जाएं कंट्रास्ट रेशियो, सॉरी कंट्रास्ट चेकर, यस हाँ,
अब ये कंट्रास्ट चेकर जो है ये आपको हेल्प करता है बताने के लिए कि आपका जो बैकग्राउंड कलर है उसके ऊपर जो आपका टेक्स्ट कलर आप अगर किसी में रखते हैं तो वो उसकी क्वालिटी किस तरह है, गुड है, अच्छी है, नहीं। जिस तरह अब सपोज हमने यहाँ पे एक डार्क ब्लू का टेक्स्ट कलर यूज किया हुआ है बैकग्राउंड में लाइट ब्लू के टिंट शेड के साथ, तो जैसे जैसे कलर लाइट होता जाएगा आपकी क्वालिटी वैसे इंप्रूव होती जाएगी। जैसे उसने वाइट बैकग्राउंड पे गया तो मैक्सिमम अब विजिबिलिटी आ रही है यूजर को, तो इस वजह से आपका जो है वो यूजर देख रहा है कि इस टाइम पर आपका जो कलर है वो बेस्ट ऑप्शन है यूजर के लिए जो कि उसको व्यू करना है। पर जैसे ही आप इसकी कंसिस्टेंसी लो करते जाएंगे Excuse वैसे me, वैसे ये पुअर पे चलता जाएगा, क्योंकि विजिबिलिटी आपको लूज करती नजर आ रही है। Aslan, I'm really sorry to interrupt you. Actually, we are running out of the time. As we know that we had the session till 12 a.m. So meanwhile, you can share all these websites in the chat link. So as I mentioned, that we also have to share some of our outreach partners and also the links for the certificates form. So meanwhile, I will be sharing that. उसके दौरान आप कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं चैट्स में, और आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस Q&As. सो इफ़ यू आर स्टिल लेफ्ट विद समथिंग, तो हम एक दफ़ा ये हमारा सर्टिफिकेट्स का फॉर्म फिल करा लें. यू कैन start again. And people are asking that kindly share the names of plugins that you were mentioning. So if it would be better if you can share the names in the chat, so log usko easily avail kar lenge. Meanwhile, it's for everyone. I hope everyone had an incredible session, and I also loved it. So yes, so most of the people are waiting for the waiting for the certificates. I would just like to share the screen for that. And first of all, I would like to announce our outreach partners. So in our outreach, we have these different universities like Bahia University, IM Sciences, Namal, um, Islamic University, ComSets, Aptabad, Air University, IST. Other than this, moving forward, if we talk about the certificates, here is the QR code for the certificates. So I would request everyone that they can scan it. Make sure to enter the reference ID. No certificates will be issued without reference ID. Also, this form is only valid for the 15 minutes. After 15 minutes, no responses will be accepted. And again, Arsalan, I'm really sorry for interrupting you. If there was something important, you can continue with it in your voice. Meanwhile, my screen is shared. You can take some questions from the chats. I think there were some good questions that we're going through. So आप तब तक उसको आंसर कर सकते हैं. Thank you. Okay, yes, sure. So I have a few questions over here. प्लगइन्स की जहाँ तक बात है वो मैं शेयर कर दूंगा इसके साथ. अच्छा, डिज़ाइन सिस्टम के अंदर एक मुझे यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि कुछ लोगों ने पूछा कि why use local variables instead of local styles while making your color palette. Well, ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जब आप लोकल स्टाइल्स के ऊपर काम करते हैं और उसमें कलर पैलेट्स को क्रिएट करते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है वो ये आता है कि लोकल स्टाइल्स के ऊपर आपकी जो कलर पैलेट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं. जैसे सपोज आपने कोई भी कलर यूज़ करना है, आइदर अगर आपका कोई ऐसा प्राइमरी कलर है वो सपोज पिंक कलर का है या सपोज ब्लू कलर का है. अब वो ब्लू कलर आप यूज़ करेंगे फॉर अ स्पेसिफिक स्क्रीन जिसका बैकग्राउंड वाइट कलर का होगा. सपोज हम बैकग्राउंड पे वाइट यूज़ कर रहे हैं और फ्रंट पे हम यूज़ कर रहे हैं प्राइमरी कलर ब्लू, तो वो आपकी सब स्क्रीन्स के ऊपर अगर पीछे बैकग्राउंड वाइट ही होगा तो वही ब्लू यूज़ होगा. बट सपोज अगर हमारे पास ऑप्शन इस तरह की हो कि हमने बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर को यूज़ करना है, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपका वही ब्लू कलर जो कि व्हाइट स्क्रीन के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा होता है, जब वो ब्लैक के ऊपर जाता है तो वो चीज़ आपको विजिबिलिटी में जो है ना वो अच्छी नहीं लग रही होती. दैट्स अ वेरी कॉमन एग्जांपल जो कि हम देखते हैं. अगर आप बहुत सी स्क्रीन्स के ऊपर देखें आजकल, क्योंकि इंक्लूसिव डिज़ाइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो जब आपने नोट किया होगा जब यूट्यूब
भी अगर आपने यूज़ किया हो तो आपने नोट किया होगा, जैसे ही आप ब्लैक कलर के ऊपर जाते हैं तो जो टेक्स्ट पहले वाइट स्क्रीन के ऊपर ब्लैक में यूज़ हो रहा होता है, वही टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाता है वाइट के अंदर। तो यहाँ पर आपने कलर्स के अंदर भी वेरिएंट्स बनाने होते हैं। जब आप लोकल स्टाइल्स में जाते हैं तो लोकल स्टाइल्स तो आपको एक फिक्स कलर पैलेट बताएगा, यानी कि आपने पीछे वाइट बैकग्राउंड यूज करना है तो उसके ऊपर ब्लू यूज हो। बट जब आप वेरिएबल्स के अंदर जाते हैं तो उसमें आप डिफाइन कर देते हैं कि ये ब्लू का शेड जो है वो व्हाइट के ऊपर होगा तो ये वाला यूज करेंगे, जब आप ब्लैक के ऊपर जाएंगे तो ब्लू का ये वाला शेड यूज होगा, यानी लाइट। इसी वजह से हमने इसके मल्टीपल वेरिएंट्स ब्लू के भी क्रिएट किए, शेड्स क्रिएट किए, ताकि यूजर के पास जो है ना वो ऑप्शन मल्टीपल हो। सिमिलरली अगर कोई फिटनेस की एप्लीकेशन की अगर मैं एग्जांपल लूं, तो अगर आपने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जिसके ऊपर मेल की भी फिटनेस इंक्लूडेड है और फीमेल्स की भी, तो फीमेल्स को अगर पिंक कलर हमने उनके लिए रखा है और मेल्स के लिए हमने ब्लू कलर रखा है, तो हमने कलर्स के 2 वेरिएंट्स को क्रिएट करना है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन सेट बनाने के लिए आई ऑलवेज रिकमेंड कि यू शुड यूज लोकल वेरिएबल्स व्हाइल मेकिंग योर डिजाइन सिस्टम इन फॉर जनरेटिंग योर कलर पैलेट्स, और क्योंकि उसमें आपके पास वेरिएंट्स क्रिएट करने की ऑप्शन होती है। सिमिलरली कंपोनेंट्स के अंदर भी एक्टिव नॉन एक्टिव स्टेट्स और इस तरह की विजेट्स जो आप क्रिएट करते हैं उसके ऊपर जो स्टेट्स होती हैं वो तभी क्रिएट हो सकती हैं जब जब आप लोकल वेरिएबल्स के ऊपर चीज को करें। जब आप स्टाइल्स पे चले जाएंगे तो आप फिक्स कर देंगे उस चीज को, फिर वो आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। हाँ, जहां तक टेक्स्ट की बात है, टेक्स्ट को हम लोकल स्टाइल्स पे क्रिएट करते हैं क्योंकि टेक्स्ट हमने फिक्स ही रखना होता है, उसकी साइजिंग हमने फिक्स रखनी होती है। वो टेक्स्ट पॉपिंस अगर यूज हो रहा है तो ये नहीं होगा कि डार्क मोड में पॉपिंस यूज कर रहे हैं तो लाइट पे पॉपिंस यूज नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा। बट कलर जो होता है, कलर्स वेरी करता है लाइट और डार्क टोन्स के ऊपर भी, और अगर एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट है तो उस केस के ऊपर भी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आई फील लाइक कि जो बताना मेरे लिए काफी जरूरी था, दैट्स वाई मैंने इसको कवर अप किया। बाकी उसके अलावा ऑटोमेशन के टूल्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, एंड होपफुली बाकी कुछ क्वेश्चंस अगर हुए तो यू कैन पर्सनली भी आप मुझे मेरे लिंक्डइन पे अप्रोच कर सकते हैं। अरसलान, मैं आपको प्राइवेट में भी चीज़ें अगर आपको कुछ पूछनी है तो मैं बता सकता हूँ, तो बाकी जो भी चीज़ है मैं यहाँ पर शेयर भी कर दूँगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। Great, great. Arsalan, you can share all the socials in the chats and also all the plugins and the stuff that was discussed. Um, Meanwhile, I'm expecting that people had a great session, and like some of the people are asking for the advanced session as well. So yes, definitely we will plan for it, and inshallah, we are planning to continue this Ramzan skill drive other than Ramzan. So yes, I hope all of the people have filled the form, and like I think किसी को इशू नहीं आया होगा फॉर्म फिल करने में. And yes, thank you so much everyone for joining us for this amazing session. Thank you so much for Salan for giving an amazing session about UI UX. Obviously it was a kind of different thing which was never discussed through the platform of Google, and alhamdulillah we have received a great response from you guys. So we will be continuing it. And other than this, I would really appreciate if you guys can share your remarks in the chats in the um, about this session. Okay, great. So yes. Salan, have you shared the plugins or link they were asking? Yes, I'm just sharing the link. I'm typing and I'll just share in a while. Yes, sure. Sure, sure. I'm just waiting for that. After that, we will end this session.
There was a question which is that someone has typed that they were expecting everything to be explained in more detail. Actually, Tayyib, the thing is that in this session we are really short of time, so we try to cover as much as we can. But obviously, we have noted your comment, and we will be doing an advanced session for it as well, and it will be from the beginners level to the advanced. So don't lose hope. We will be continuing it, and just stay familiar to our socials for the future updates. Okay, thank you. Okay, so Arsalan has also shared the plugins for UI. I hope everyone will note it down. After that, we will we will be ending this session.